हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी आर डिस्कस विथ यू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। इट इज़ द फ्लो ऑफ द मनी, इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज across the different sector of the economics in a circular form। जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर द फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, तो जब इन सारे फ्लो को हम सर्कुलर फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं या सर्कुलर फॉर्म में समझते हैं, तो ये क्या कहलाता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में इसको समझना चाहें तो unending flow of activity of the production, income generating and the expenditure in any economics are called a circular flow of the income. One thing is very clear: a circular flow, that means a never end. Circular flow, that means it's have a never end of the production and never end of the income. So a flow which is a never end of a production and of the of income is called the circular flow of income. Today we are discuss about the circular flow of income. When we consider about the diagram, the production of goods and services, productions of the goods and services motivated to the produce things which help to the generation and distribution of income. It's help to the generating the income, the generations or and the distributions of the income. It is a help to generate the income. When we purchase a goods and when we produce the goods and services, it's help to the generating and distributions of the income. And the other, when we increase the income and when we get the income, it's used to the expenditures of the income. The production of goods and services causes of the income, and that's causes of the income basically related to the distribution of income. When a producer required a households, other than he use a land, he use a labor, he use the house which are obtained by the household. So if a producer produce the goods and services, he have required to produce goods and services, labor, building, land, raw materials, and etc. other things. It's only fulfilled by the household. And when we started the productions, he distribute. When he take the land, he paid the rent. When he hired the labor, he paid the wages and his salary. And when he get a capital through the share and the other sources, he paid the interest. So the productions of the goods and services involved to the generate the and distribute the income. And that when the income is the met, when income is the met, it is the causes of the expenditures, and it is the causes of the expenditure. When we expend the money, why we expend the money? You have fulfilled her basic needs, and the other needs which you have want to fulfill, you expend the money, you expend your income. Similarly, we have a required us goods and services, then we expend the money on the goods and services. So when the income is the met, it's the use on the expenditure, and when expenditure is met, इट्स अ काउजेज ऑफ द प्रोडक्शंस। बाजार में अगर किसी वस्तु का डिमांड है तो उसके लिए तो उत्पादन होगी, और उत्पादन होगा तो इसका मतलब क्या है? प्रोड्यूसर्स को बाजार के डिमांड को या कंज्यूमर्स के डिमांड को, कंज्यूमर्स के नीड्स के, कंज्यूमर्स को वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए या उसकी सप्लाई को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? प्रोडक्शंस करना होगा। अगर हम इस सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम के बारे में समझें तो प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक प्रोड्यूसर जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है
तो उसके लिए वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, किस तरीके से वो अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेबर हायर करता है, उसको वेजेस पेड कर देता है। अगर वो लैंड हायर करता है, लैंड लेता है या रेंट लेता है, मकान लेता है, तो वो क्या करता है, उस हाउस होल्ड को जो है रेंट पेड करता है। बिल्डिंग लेगा तो रेंट पेड करेगा, अगर लीज पर लिया है तो उसके लिए पेमेंट करेगा। और अगर दूसरी किसी तरीके से किसी हाउस होल्ड को वो यूज करता है तो उसको क्या करेगा, वो उस प्रोडक्शंस के लिए उस हाउस होल्ड को जो है वो पेमेंट कर देगा। और जैसे ही उसको वो पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड हैव टू जनरेट द इनकम। अब इससे क्या होगा, एक हाउस होल्ड को इनकम होगा, लेबर को उसका रेम्युनरेशन मिल जाएगा, मकान के ऑनर्स को उसका किराया मिल जाएगा। एक कैपिटल शेयर होल्डर्स है, नहीं शेयर होल्डर्स भी तो बिजनेस में पैसा लगाता है शेयर खरीद कर, और या कोई इन्वेस्टर्स है जो बिजनेस को पैसा दिया, प्रोड्यूसर्स को पैसा दिया है, उसके बदले वो उसको इंटरेस्ट देगा। इट इज द सोर्स ऑफ द इनकम। हर लोगों को, हर हाउस होल्ड्स को क्या होगा, उसको फैक्टर इनकम इंक्रीजेज होंगे उसके, और इसके फैक्टर्स इनकम जैसे ही इंक्रीज होते हैं तो वो क्या करेगा, अपने इनकम को एक्सपेंस के रूप में कन्वर्ट कर लेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, क्योंकि उसकी तो आवश्यकताएं हैं, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने इस इनकम को यूज करेगा। कैसे यूज करेगा, तो अपने वांट्स को, अपने नीड्स को, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वो अपने इनकम को यूज करेगा, या हम कह सकते हैं कि वो खर्च करेगा। अब जैसे ही वो एक्सपेंडिचर ऑफ द इनकम, अपने आय को जैसे ही, अपनी इनकम को जैसे ही वो एक्सपेंड करेगा, इसका मतलब क्या है, इट्स क्रिएट अ डिमांड। अब जैसे ही वो इनकम एक्सपेंड करेगा तो वो सामान खरीदना शुरू करेगा, गुड्स यूज करना शुरू कर देगा, सर्विसेज यूज करना शुरू होगा। और जैसे जैसे वो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना शुरू कर देगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट यह आएगा कि वह प्रोड्यूसर को मोटिवेट करेगा कि आप प्रोड्यूस करिए गुड्स और ज़्यादा प्रोडक्शंस कीजिए, ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को अधिक से अधिक पूरा कर सकें। और जैसे ही ये डिमांड बढ़ेगा, जैसे ही ये मांग बढ़ेगी बाजार में, ज़्यादा एक्सपेंस होने लगेगा या हाउस होल्ड के द्वारा परचेज ज़्यादा किया जाने लगेगा, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, प्रोड्यूसर फिर से प्रोडक्शंस करेगा, फिर से वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा हाउस होल्ड को, और फिर हाउस होल्ड उस इनकम को फिर एक्सपेंड करेगा, फिर वो प्रोड्यूसर को मोटिवेट करेगा। और इस कारण यह सर्कुलर फ्लो कभी खत्म नहीं होगा। प्रोडक्शन होगा तो इनकम होगा, इनकम होगा तो एक्सपेंडिचर्स होगा, एक्सपेंडिचर्स होगा तो फिर प्रोडक्शन होगा, और इस कारण यह जो सर्कुलर फ्लो जो है वो कंटिन्यू चलता होगा, यह कभी भी खत्म नहीं होता है। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में हम कह सकते हैं कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो सर्कुलर रोटेशन है प्रोडक्शंस का, गुड्स एंड सर्विसेज के इनकम का और एक्सपेंडिचर का, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोड्यूसर। गुड्स एंड सर्विसेज को किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। फिर प्रोड्यूसर क्या करता है, फिर प्रोड्यूसर इट्स बाय प्रोड्यूसर काउजेज जनरेशन ऑफ इनकम, और इसके कारण क्या होता है, इनकम जनरेट होता है ड्यू टू द पेमेंट ऑफ फैक्टर इनकम टू द हाउस होल्ड। किसके कारण होता है, अभी हम बताएं कि हाउस होल्ड को पेमेंट करने के कारण क्या होता है कि फैक्टर इनकम जो है वो क्या होता है, जनरेट होता है। दूसरा है इनकम। इनकम इज द काउजेस ऑफ द एक्सपेंडिचर्स। अब लोगों के पास जैसे ही इनकम होगा वो क्या करेंगे, खर्च करना शुरू करेंगे, एक्सपेंडिचर्स होना शुरू होगा। और जैसे ही खर्च होने लगेगा, किसके ऊपर खर्च होगा, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर खर्च होगा। तो इससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगा, और यानी इनकम काउजेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और तीसरा फ्लो क्या है, एक्सपेंडिचर्स नहीं, काउजेस प्रोडक्शन बाय जनरेटिंग डिमांड। क्यों प्रोडक्शन होगा, एक्सपेंडिचर काउजेस ऑफ द प्रोडक्शन, क्यों, क्योंकि बाय जनरेटिंग ऑफ डिमांड, जैसे ही एक्सपेंस होगा इसके थ्रू क्या करेंगे हम लोग, डिमांड जो है वो जनरेट होगा, और इस कारण क्या होगा कि फिर से जो है प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये सर्कुलर फ्लो जो है वो कंटिन्यू रोटेट होता रहेगा। नेक्स्ट, so now again there is a generated of the income, so flow of the income has no end or beginning, that is called the circular flow of the income। यानी इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, ये जो फ्लो है वो कंटिन्यू जैसे जैसे रोटेट हो रहा है, ये एक सर्कल में घूम रहा है, रोटेशन हो रहा है, इस कारण हम क्या कहते हैं, इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्लास में इसको हम और डिस्क्राइब करेंगे वीडियो 2 में।
और उसके बाद फेजेस ऑफ द प्रोडक्शंस के बारे में भी जो है सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको हम बेहतर तरीके से और एक्सप्लेन कर कर बताएंगे। थैंक यू, टेक केयर, स्टे इन होम।